Friends, welcome back to our class in English Literature, class 8. In English Literature, today I am going to discuss our chapter. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. I have given you summary of this chapter, but today I am going to repeat your summary as I folded the letter again and I slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where copper bird burned out cell, a roof gaping and windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of the Mrs. McPherson. यस। फिर कहता है जैसे ही मैंने बड़ी उत्सुकता से बहुत ही सावधानी पूर्वक उस लेटर को खोला और मैंने उसमें जैसा कि उस पर लिखा हुआ था कि वो लेटर जो था वो कहता है कि मैंने फिर वहाँ पर मैंने किसी लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को टहला रहा था, उसके बारे में पूछा कि यहाँ पर कॉपर बीचेस कहाँ पर है। फिर कहता है I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains. Why did the author go to Bridgeport? क्यों गया था? आपको इसी पैरे से आंसर छाटते हैं। क्यों गया था? क्योंकि वो कहता है कि I drove into Bridgeport just a few miles away. I asked a boy. किस लिए गया था? कहता है उसे ये पता करना था क्योंकि वो ये लेटर जो है वो किसका है, इसलिए वो वहाँ पर गया था। Nursing home easily enough. There were paper chains up the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. वो क्यों गया था? वो गया था क्रिसमस प्रेजेंट को देने गया था मिसेज मैकफर्सन को। And I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. क्या देखा वहाँ पर? वो डाइनिंग रूम में गया जहाँ पर हर कोई एक पेपर हैट पहने हुआ था, लगाए हुए था और गाने गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और जो वो लेडी थी वो भी उसको देखकर बहुत खुश हो गई। And she even offered me a mince pie. She walked me alone in the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, no one visits. उन्होंने क्या कहा कि वो बहुत कंफ्यूज थी आज क्योंकि आज उनका त्यौहार था, तो इसलिए उन्हें अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए वो जाकर चुपचाप लेट गई। वो और कहेंगी उन्होंने कहा उनके कोई परिवार में कोई भी नहीं था, तो आप अच्छे से जानते हो। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। She took me into the conservatory with wicker chairs and potted plants all round and left me. The old lady was sitting in a wheelchair. एक ओल्ड लेडी जो थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके हाथ जो थे वो गोद पर रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके बिल्कुल गोल्डन बाल थे, वाइट मतलब बिल्कुल सफ़ेद बाल थे। फाइंड इनटू अ विस्पी बन, उसका एक जूड़ा बने हुए थी। सी वॉज रेजिंग आउट द गार्डन। हेलो आई सेड। सी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। मैंने उससे कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई थिंक इट्स योर्स। कहता है कि मैंने सोचा ये गिफ्ट आपके लिए है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अचानक उस गिफ्ट को खोलकर उनका चेहरा जो था बिल्कुल प्रसन्नता से भर गया। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. She said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. Suddenly, she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. She told me, "You have come by Christmas, dearest," she said, "and here you are, the best Christmas."
हियर यू आई वाइज, क्या कहा उसने कि बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट जो इस संसार में सबसे अच्छा गिफ्ट है जो आज आप लेकर आए हो, कम क्लोजर और नज़दीक, और डियर जिम सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल में बैठ गया। एंड सी किस्ड मी माई चीक्स, उन्होंने मेरे गाल चूमे। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, it always made me feel good with me, and now you are back, you can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much, and then perhaps I will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. क्या कह रहे हैं कि आज अच्छे से मैंने क्रिसमस केक तैयार किया है और मुझे आशा है ये क्रिसमस गिफ्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो प्लीज राइट डाउन ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। टेक आउट योर बुक एंड आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर।
हाँ बच्चों देखिए, आपका ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ रोल टॉप बॉक्स फ्रॉम वेयर द आथर फाउंड इट बॉक्स। बॉक्स की कंडीशन क्या थी और आथर को ये बॉक्स कहाँ से मिला था। तो रोल टॉप बॉक्स वाज मेड अप ऑफ ओक। वो एक यानी बरूद के वृक्ष पे लकड़ी से बना हुआ था। एंड इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में था। इट ब्रिंग्स स्पॉट मार्क्स, इसमें खरोंचे के निशान पड़े हुए थे। ऑल राउंड वन साइड, और इसमें चारों पूरी जगह पर खरोंचों के निशान बने हुए थे। एंड वन लेग इज क्लमसली मेंडेड, एक पावा जो था, उसका एक पाया जो था वो बहुत भद्दी तरीके से उसको रिमेंड किया गया था, मरम्मत उसकी की गई थी, देखने में बहुत बुरा लग रहा था। एंड फाउंड रोल टॉप बॉक्स, ही फाउंड रोल टॉप बॉक्स फ्रॉम ए जंक शॉप। इसे एक कबाड़ी की दुकान से यानी पुराने सामान की दुकान से उसको मिला था। ब्रिजपोर्ट में उसको मिला था। ठीक, अब आप बेटा इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर नोट करिए। देखिए क्वेश्चन, व्हाई डिड द आथर रोल टॉप बॉक्स, व्हाई डिड द आथर रोल टॉप बॉक्स, व्हाई डिड द आथर रोल टॉप बॉक्स इवन दो, व्हाई डिड द आथर बाय, आथर BUY बाय, why did the author buy a roll top box even though it was in bad condition। यद्यपि रोल टॉप बॉक्स जो था वो बहुत बैड कंडीशन में था, फिर भी आथर ने क्यों खरीद लिया था, फिर भी उसे आथर ने क्यों खरीदा था, फिर भी आथर ने इसे क्यों खरीदा था। देखिए द आथर बॉट रोल टॉप बॉक्स क्यों खरीदा था, क्योंकि उसको बहुत अधिक आवश्यकता थी और वो इतना गरीब था कि उससे नया खरीद नहीं सकता था। लिखिए द आथर बॉट BOUGST, द आथर बॉट रोल टॉप बॉक्स ऑफ बैड कंडीशन, रोल टॉप बॉक्स ऑफ बैड कंडीशन बिकॉज इट कास्ट because it cost little money and he could because it cost little money and he could easily restore it by working on it, मैंने आपको और लिखे इसी में the author bought roll top box of bad condition because it cost little money and he could easily restore it by working on it. Okay, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, what did the author find, what did the author find in the secret drawer, देखिए he found a tin box, उसे एक टीन का बॉक्स मिला था, उसमें एनवलप मिला था और उसमें उसका लेटर लिखा था। देखिए he found a tin box cello taped CELLO cello TAPED cello taped to the top of that was a piece of lined note paper, lined note paper in the secret door। ओके बच्चों, आज होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा।